we will start from here. And also the question regarding the semiconductor physics. I think it's little bit difficult here for me even to understand the molecular physics level. So we will manage that in our Saturday session, next Saturday session. At that time, I will prepare my slides for that, so we will discuss that one. But if you have a small doubts like, so I will try to do that, resolve that. So coming to here, now I think methods is over, method study is over. If you have any doubts till now, you have any of doubts No, regarding no. to, no? Okay. In So method we can use Poisson equation also. Poisson's equations also, you have question or you are saying, I am just question. asking? Okay, okay, question. Yes, ma'am. So no. There is a three methods only as per their manuals. As per their So where manuals, we can use Poisson rule? Poisson's equation. You're asking that Poisson equations. Yes, yes. So Poisson equation is a model. It's model. You can't use that in your model statement. That is model statement. So you have to use like it's Poisson equations. You can say diff diffusion model. I think no, not think the diff diffusion model is हिंदी में कह रहा हूँ मैं, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन मॉडल जो होता है सिल्वाको के अंदर, वो इनबिल्ट होता है। तो पॉइजन इक्वेशन तो आपको पता ही है कि सॉल्व किस लिए करते हैं। हम पोटेंशियल ग्रेडिएंट के से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से हम पोटेंशियल ग्रेडिएंट के थ्रू हेल्प से बाकी चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये करते हैं ना, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के हेल्प से हम बाकी चीज कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पॉइजन इक्वेशंस हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन वो इनबिल्ट होता है उसके अंदर। अगर आप जैसे कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं अगर कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई मॉडल इस्तेमाल करता है, तो उसमें पॉइजन इक्वेशन इनबिल्ट होती है। जैसे अगर गुमल भी यूज करेगा तो वो पॉइजन इक्वेशन सॉल्व करेगा, न्यूटन भी करेगा तो न्यूटन भी सॉल्व करेगा, ब्लॉक भी करेगा तो ब्लॉक करेगा, क्योंकि बिना पॉइजन इक्वेशंस के हम चीजें सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल बेसिक चीज है ये चीज, मतलब जो इसकी मतलब जो सिल्वाको के लिए जो मतलब वो नहीं होती, मतलब सॉफ्टवेयर को पहले पॉइजन इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना, मतलब चाहे कोई सा मेथड आप यूज करो, समझ रहे हो। तो It means that it is by default solved. We yes, don't by have. default solve. We there's different method. They may, it may have a different method, but it is by default have to solve to get the solution. Okay, thank you. Okay. So now comes to the obtaining solution. The part where we need to get the solution. We have completed the method, and model statement and everything. Now comes to the obtaining solution. So what is that? It is a DC solution. DC solution means if you apply right like solve we get 1, it means you are applying a gate voltage of 1 volt. Okay, and then you write like solve we get 2, that means that you are applying 2 volt. It is like a volt, it's not, it is DC things। ये डीसी मतलब डीसी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पर, ठीक है। अगर हम कुछ अप्लाई नहीं करते, जैसे मैंने कुछ लिख भी दिया है इसके लिए कि तुम्हें कंफ्यूजन, आपसे मतलब कंफ्यूजन हो जब नोट्स पढ़ोगे। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी ड्रेन नहीं लिखा है, और ये मतलब मान लो वी सोर्स नहीं लिखा है, तो वो इसे इनबिल्ट यहाँ पे मतलब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे इनबिल्ट वो से अज्यूम कर लेगा कि हमने वी सोर्स 0 लिया है, क्योंकि सिल्वाको अज्यूम कर लेगा। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सोल्व वीक सोर्स 0, क्योंकि अगर आप लिख देना तो भी कोई कुछ होगा नहीं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कुछ हो नहीं रहा, तो हमें लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिल्वाको अगर आप नहीं लिखते तो उसे 0 मान लेता है, 0 वोल्ट मान लेता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द for voltage you have to write V and then and not need to write in capital, you can write in a smaller one, but for I have write in capital one, and you can also write as I thought, you can write it also in a smaller one. Okay, that is not the big issue. Okay, so it is I. Now comes to DC sweeping. So DC sweeping means what? DC sweeping मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप एक एक रैम्प इनपुट टाइप का है, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं, एक इधर करूं, इसे क्लियर करते हैं। I have to move. Yes, here you can see here. You can see here. Wait. Yes, you can see this V base. That means that you are applying a collector voltage of VC of 2 volt. Okay.
at your, Understood. like you are, if you are drawing a MOSFET, that means you are applying a 2 volt here, and you are not giving the emitter one. So emitter is grounded, because I have told you previously that if there is not given anything, then that is assumed to be 0. So that Okay. maybe we can take its ground. And you, as I told you that it's applying 2 volt at collector, so you have to take 2 volt. Now that means अगर ये, अगर जैसे अगर दोनों स्टेटमेंट ऐसे लिखे हैं कि पहले हमने वी कलेक्टर लिखा है, फिर हमने वी बेस लिखा है, तो इसका मतलब है वो वी कलेक्टर को पहले अज्यूम करेगा, वी कलेक्टर उसमें पहले से माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वी कलेक्टर अलग स्टेटमेंट है, अलग सॉल्व करेगा, और वी बेस अलग है। वो पहले वी कलेक्टर है तो उसको मानेगा और साथ में अब इसको अप्लाई करेगा। अब जो यहाँ पे वी बेस पे जो अप्लाइंग होगी वो कुछ ऐसी होगी, मतलब अब जैसे ये है एक, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब बेस है, अब यहाँ पे वी बेस पे जैसे ये, कि ये ऐसे बढ़ गया, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यूं ये अप्लाई करेगा। अब ये टाइमिंग चीजें नहीं है, टाइमिंग से रिलेटेड चीज नहीं, मैं बस जस्ट ये सिखाना चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है वोल्टेज, तो ये अप्लाई होगा इसके थ्रू, इसके अक्रॉस, पानी दियो उनको। ठीक है। ये वोल्टेज अप्लाई होगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि हम धीरे धीरे जीरो से, बट जीरो है, फिर इसका जी हमने यहाँ पे 0.05 लिखा, फिर 0.1 लिखा, एंड ऐसे करते करते हमने 1 तक गए, 1 के बाद एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हम डी सी बी निकालते हैं, इसके थ्रू हम कर निकाल लेते हैं अपना कि वी बी कैसे डिपेंड करता है, बेस्ड कैसे डिपेंड करता है आईसी पे, आईसी आईबी पे, ओके। और ओके। एक और थिंग जो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, शायद मैं भूल जाता इसलिए मैंने नोट लिखा है, तो इसका कारण ये है कि कभी कभार क्या करते हैं, जैसे हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हम ध्यान नहीं देते, जैसे अगर कुछ कुछ बंदे से लिखते हैं 0.0 है, 0.1 से स्टार्ट किया उन्होंने, और उन्हें कंप्लीट करना है एट 0 पॉइंट, मान लो उन्हें उन्हें कंप्लीट करना है, उन्हें इंक्रीज करना है 0.02 से, हर बार 0.202 से इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, और उन्हें जाना है 1 तक। तो आप जानते ही हो कि अगर मैं 1 तक जाना चाहूंगा तो ये तो पॉसिबल है, और अगर मैं 0.2 यहाँ पे अगर इसे हटा दूं, इसे हटा कर इरेज कर दूं, और इस जीरो को हटा दूं, अगर मेरे को हर में 0.2 का इंक्रीमेंट करना है, इसमें हर बार जीरो, मतलब ये समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये 0 पॉइंट इनिशियल वैल्यू है, दिस इज इनिशियल वन, दिस इज स्टेप वन, एंड दिस इज द फाइनल वन, ओके। ये मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज द फाइनल वन, दिस इज स्टेप, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। तो अगर आप इनिशियल में हर बार इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 0.3 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 0.6, 0.7 होगा, और 0.9 होगा, तो 1 पे कभी रीच नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, सिल्वाको उसे 0.9 तक ही एज्यूम करेगा, 1 एज्यूम नहीं करेगा। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि जब स्टेप्स ले रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये दोनों, मतलब ये दोनों पॉइंट आए उसमें स्टेप्स में, स्टेप्स की वजह से, एडिशन ओके। में होने पे स्टेप्स की वजह से आए, तो वो मैंने लिखा है नोट्स में। सो ओके। नाउ हम ये रिसर्च करेंगे कि तो ये क्या है, ये पूरा कोड क्या कर रहा है, कोड कर क्या रहा है ये कोड हमारा क्या करेगा कि जैसे अब हमने क्या किया, मैंने जैसे बताया ना कि सिल्वाको का ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ये है, जैसे हमने सॉल्व वीकेट 1 किया, तो ये अब इसको ये और इस फाइल में डाटा सेव करेगा इसका, ठीक है। ये फाइल इसका इसमें डाटा सेव करेगा, जो कि हमने यहाँ पे लोड इन फाइल सॉल्व वीकेट, अब ये जो जो इसकी वजह से जो डाटा सेव होगा वो इसमें सेव होगा, ऐसे करके, मतलब ये बहुत ही रिडिकुलस सा मतलब स्टेप्स है, हम ऐसे गंदे तरह से करते नहीं है, पर जनरली मैं इसको समझाना चाहूंगा, जैसे कि सॉल्व वीकेट है, हमने डाटा कहाँ डालना है, सॉल्व वीकेट 1, और सॉल्व वीकेट 2 है तो उसमें सॉल्व वीकेट 2 पे, सॉल्व वीकेट 3 है, 3 मींस 3 वोल्ट, 2 मींस 2 वोल्ट, 1 मींस 1 वोल्ट, इसको हमें मानना होता है। और फिर हमने क्या किया, अब जो डाटा है वो हमने क्या किया, लोड किया इन फाइल जो डाटा, हमने डाटा किससे लेना है, सॉल्व वीकेट 1 से, ठीक है। अब उस डाटा को हम कहाँ कर रहे हैं, डाटा एक आउट कर रहे हैं, वो है हमारा डाटा आउट करने वाला, वो किसमें हम कर रहे हैं, मोस्ट डेंट स्वीप 1 पे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब ये डीसी स्वीप स्टेटमेंट है, डीसी स्वीप का मतलब ये है कि वी ड्रेन हर बार स्टेप इंक्रीज करते करते 3.3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है लॉग आउट फाइल वाला, वो डाटा इसमें स्टोर होगा, इसकी वजह से इसमें स्टोर होगा, ठीक है। और ये इसका क्या काम फायदा हुआ यहाँ पे, ये इतना बड़ा करके लिखने का क्या फायदा हुआ, अभी इसका फायदा ये हुआ कि अब देखो, अगर आपको करना क्या पड़ता कि आप हर किसी को सेपरेट लिखते, पहले क्या करते हैं, पहले जैसे मैं एग्जांपल के तौर में दिखा रहा हूँ क्या है ये असलियत में हो क्या रहा है, वैसे समझ गए होंगे आप। देखो ये क्या है, देखो सॉल्व वीगेट 1 है, अब ये जो डाटा है, ये जो डाटा है वीगेट 1 वोल्टेज का, वो ये लोड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और लो और ये लॉग आउट फाइल है, ये एक फाइल है जो कि इसका डाटा स्टोर करेगा,
ठीक है। और यहाँ पे क्या, फिर हमने लोड इन फाइल किया, सोल्व वी गेट 2। तो ये अब ये इसका डाटा इन इन करेगा, इसका डाटा इन करेगा, किसका डाटा, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का डाटा इसमें इनपुट करेगा और इसका आउट करेगा। मतलब ये एक फाइल है जिसमें ये डाटा स्टोर होगा, समझ रहे हैं? ओके। तो ये एक बहुत ही गंदा तरीका है, पर लेकिन ये सिल्वाको के मैनुअल में था, तो ये बहुत, मतलब ये जनरली इस केस में यूज़ होता है कि जब आपको हर वोल्टेज के लिए अलग-अलग चेक करना है। जैसे कि क्वेश्चन्स हो सकते हैं ना कि अगर हम 1 वोल्ट अप्लाई किए तो ये आया, 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो कैसा करवाएगा, 3 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो कैसा करवाएगा। तो उस केस में हम ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे ओके। हमें कभी-कभार क्या होता Yes. है, सिल्वाको में करना पड़ता है, तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप समझ में आओगे तो अब हम नीचे आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या हम सारे ग्राफ एक ही प्लॉट में देख सकते हैं क्या? हाँ, उसके लिए ओवरले स्टेटमेंट होता है। वो टोनी प्लॉट ओवरले स्टेटमेंट होता है, उसमें हम ओवरले करके सारे फाइल को एक में सेट कर देते हैं। ओके। तो वो ओवरले स्टेटमेंट। ओवरले 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 मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है शायद, ओके। मेरे वाली स्लाइड में नहीं है ओवरले, पर ओवरले एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम टोनी प्लॉट ओवरले करके कर सकते हैं डिफाइन, ऐसा। Is there तो any statement for a synopsis ticket? सेंचुरीज टिकट Yes. आई डोंट यूज सेंचुरीज टिकट टिल नाउ। I I have that problem actually, that ओके, I cannot extract all the file together. I mean, for 1 volt, so for you two can use volt. I will tell you, use the any plotter, and use the any plotter, you extract the data from the census ticket and use the some mathematical tools like MATLAB and Oregon. I think that is the tools for you can use their tools for plotting your data there. Okay, That is the MATLAB. one way. Yes, MATLAB, Okay, और एक Oregon होता है, एक Oregon भी होता है। उसमें हम मैथमेटिकली जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसमें डील करते हैं हम, uh, क्योंकि हम इटरेशन फॉलो करते हैं। Simulink or नहीं, सिमुलिंक में नहीं, मतलब जैसे नॉर्मल नॉर्मल कमांड में होता है, कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह में होते हैं, मतलब उसमें हम मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे एक तरीका ये भी है कि आप डाटा को, सारे डाटा को किसी उसमें कन्वर्ट कर लो, किसी यू कैन से वो होता है ना कि स्प्रेडशीट में कन्वर्ट कर लो उस डाटा को, उस डाटा को स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करने के बाद उस डाटा को किसी प्लॉटर के थ्रू प्लॉट कर लो। मैटलैब में प्लॉटर होता है एग्जैक्टली, आई डोंट नो येट, आई डोंट नो यूज, आई डोंट एवर यूज दैट, बट समबडी टोल्ड मी दैट मैटलैब हैव अ प्लॉटर, यू कैन प्लॉट देयर, बिकॉज़ मेरे को तो कभी जरूरत नहीं पड़ी yes, कि मुझे मतलब I क्योंकि already तो had that, but I don't know how. ओके, चलो मैं देख के बताऊंगा, मैं उससे पूछूंगा जिस बंदे ने, मतलब मेरे साथ जो कर रहे थे बंदे, तो Can we do it उन्होंने in किया था ये Excel, चीज, मतलब ऐसे करके। Microsoft Excel? सॉरी, मतलब Yeah. मतलब मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, सब कुछ आपको सिल्वाको की तरह बता रहा हूँ कि इसमें भी आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो शायद उसमें भी होगा ऐसा कि आप डाटा को, सारे डाटा को, जो डाटा है ना, मतलब जैसे लॉग फाइल है, उन लॉग फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करके अपने इसमें उतार सकते हो, क्योंकि मतलब इन योर स्प्रेडशीट्स यू कैन you can take the data of that every particular point of voltage and current, you can use uh, in your spreadsheet, in your Okay. extract in your spreadsheets, extract in your spreadsheet. So then you can use that data, because you know that if you want to plot between gate and voltage, just take the whole data and plot that data in x-axis, and that plot in the y-axis, and you get the curve as same as that curve is your, because you know that there is nothing like that. It is using the log file and taking their data and plotting that data. Tony plot has only this work. Tony plot is doing your data in log file, take that data, and that is plotted. So they are make a program name is Tollyplot, which is only extracting the data from the log file and use it to plot that. So you can use log file of Silvaku also, and any other thing, and you can plot using, I don't know exactly, but I will tell you how that person, how any person doing in my college or my surrounding, they are using these things, because in my college also they always prefer to use Silvaku. Centress is a good, and but they prefer to use Silvaco because generally in my college there is work on solar cells, and solar cell is generally good to deal in Silvaco.
So that's why Yes. Solar cell we can handle it by Silvaco, Centauros, and Escape. yes, escape, but they all have some limitation, but that is overcome in the Silvaco one. In the Silvaco one, you can do in 3D one there, Centros Yes, 3D yes, simulations. yes, Okay, so you need to write the code or not for Centros, or you just yes, define the material. yes. I just have to define the material, just like silicon dioxide or hafnium dioxide. Okay, 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 okay. Here you have to write the code. It is little bit a different one than this. There you have to define the. You have to write the code there, or you have to write define the structure in the structure like this one. Uh, I will tell. like They this one, I have to write the code. like this. Yes, yes, like this. Okay. There also be But there. there is also a Excel file in Centauros which you define that the voltage Okay. differently, just like voltage 1, voltage 2, voltage 3. Okay. But we Okay. can define it in Excel file. In Centauros, there is a Excel file. Okay. We can Okay. Okay. save that voltage Okay. Okay. easily. Okay. 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 That is also a good software. I don't know. I have not used that software. That's why I don't know exactly about that. That what I am explaining you? Is it also possible in that like Yes, yes, yes. same coding? Yes, yes. It is same, but some different actually. Just like V drain, it will can define VD or VG Okay. easily. Okay. Solve name drain, we can use just set indigo drain, then say V D Okay. or Okay. VS. Yes, Oh, okay. 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 Oh, that is also good. So actually, you know what is difference between these two statements? Can you tell me difference between these two? Can you try to what is the difference between this one and this one? actually there is no difference because gate voltage and drain voltage are same. Okay, that is you right. You are right. The curve is getting right, but here it is a big point here that here here you know that any structure you have defined मतलब तुमने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया है तो तुम जब देखोगे वहां पे तुमने वी गेट 1 वोल्ट अप्लाई किया है तब तुमने ये दो डिफाइन नहीं किया है तो उसका मतलब वहां पे वी स्टेट जीरो है और यहाँ पे वी ड्रेन जीरो है ये जूम करके हम यहाँ सॉल्व करेंगे वी गेट को पर इसके केस में हम क्या करेंगे हम यहाँ वी गेट जो प्रीवियस डाटा है वी गेट वो हम मान रहे हैं और यहाँ पे वी सबस्ट्रेट -1 मान रहे हैं और फिर हम और वी ड्रेन को जीरो मानेंगे और पर जो लास्ट वाले केस है इसमें हम वी गेट को 1 मानेंगे वी सबस्ट्रेट को -1 मानेंगे और वी ड्रेन को 1 मानेंगे समझ रहे हो ये लास्ट में जाके सॉल्व होता है ये जो चीज है तो इसमें कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम कम होगी इसमें कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम ज्यादा होगी क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे समझे ये यही चीज Yes, है yes, yes. तो ये सिल्वाको के एक ये नहीं मतलब सिल्वाको का फायदा नहीं बता रहा मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट हम कैसे लिखना है स्टेटमेंट हमें ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम कम हो जाएगी फिर Lamia, you understand this one? Huh? Lamia? Yeah, Oh, okay, 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 I understand. okay, okay. Mm, also, one more thing, you have also used in Centrus one that you have to apply the very small voltage initially. Yes, Those I so can use 0.05 voltage, yes, just like 50 millivolt. initially you have to use very small voltage because you know that may cause convergence issue. So you have to use the smaller one. So here also you have to use the smaller one. You can't use like a 2 volt here and 3 volt directly. Maybe you can use, but I that is also not use 3 volt in TFET. TFET. You are using 3 volt. No, no, I'm not saying that you can't use that one. I'm saying that they may be causing convergence issue. Yes, So yes, you there is some limitance. If we use more larger voltage, voltage. then the curve and the curve will be distorted. No, curve is distorted. It because I will tell you the reason behind. You are using Newton methods.
So Newton need to be get a gauge value. So if you are giving a larger gauge value, or any gauge value which is like a, which is not in the solution region of the Newton one, Newton region, Newton Raphson, because Newton Raphson has a one problem is that it is sometimes get diverged. So if you define the solution at define gauge the value as a solution, as like you're using a 3 volt, you're using a 3 volt, and 3 volt is somewhere, you can say, is not like a, not in around the gauge value, or it is very far from the gauge value. So that's why it is, you can say, getting that distorted curve. So that's why we are using uh, as a voltage as solve, we get 0 0.1, 0 0.2, 0.3, and then increase till 3 volt. That will give the Silvaco because that is that data of solve, we get 0.1, solve we get 0.2, and solve we get 0.5, as that data is stored in the log file, and that is used by Newton for gauging the initial result. So that is the profit. So that's why you are getting a distorted slope. Maybe you try with the little voltage, increase the little voltage, and then increase till 3 volt. Then maybe you are getting a little bit gooder curve than right now what you're getting. Yes. So now comes to solving it. This is solving it statement. You solving it is all basically use. I have also write this one because if you have to use that one, if you read that one, solve it in it means something you are using the initial value as zero. Everything value as a zero. So that is come here solving it, and also I have get one more thing here. Uh, Initial gauge में जो होता है ना, वो दो solution is formed in the zero carrier mode solving only for potentials. ठीक है, ये क्या करता है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन और होल्स को अज्यूम करके करता, सॉल्व नहीं करता। तो ये अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमने सॉल्व यूनिट, तो सॉल्व यूनिट से हमारा निकल गया सॉल्यूशन, मतलब वहां पे कन्वर्जेंस इशू नहीं आई, उसके आगे कन्वर्जेंस इशू आती क्यों है? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्व यूनिट तक तो कन्वर्जेंस इशू नहीं आई, पर उसके बाद आ जाती है, सॉल्व हमने बीटन वन किया तब आ जाती है। तो उस केस में हम कैसे निकले? तो ये निकले क्या, मतलब वो क्यों होता है ऐसा, वैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्व यूनिट होता है ना, वो जीरो कैरियर मोड, मतलब वो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि वो ना अज्यूम करता है कि वहां पे कोई कैरियर नहीं है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन होल से अज्यूम करके सॉल्व नहीं करता उसे। ठीक है, और उसे और वो सॉल्व बस पोटेंशियल करता है, मतलब पोटेंशियल मतलब पोजीशन इक्वेशन वगैरह सॉल्व करता है वहां पे वो, बस जस्ट छोटी मोटी चीजें सॉल्व करता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो सॉल्व इनिशियल से बस हमें एक क्लू मिल जाता है कि इनिशियल गैस क्या होगा उसका, या हमारा कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इनिशियल गैस करना जरूरी है क्योंकि जीरो पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर जब आगे अगर उसके आगे हम कुछ गलती करें, मान लेते हैं हम, चलो सॉल्व यूनिट के बाद हमने अज्यूम कर लिया बहुत ज्यादा हायर मान लिया, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सॉल्व वीडेंट 2, और यहाँ पे सॉल्वेंट 0.0 0.2 तो दोनों में से जो कन्वर्जेंस इशू इसमें आएगी, इस वाले में कन्वर्जेंस इशू इसलिए आएगी क्योंकि हो सकता है कि जो न्यूटन रैप्सन यूज कर रहा हूँ मैं, उसका उसका जो रूट, जो मतलब रूट्स है वो यहाँ इसी इसी बीच में कहीं लाई कर जाए, इन्हीं बीच में लाई कर जाए, तो वो वाली इशू आएगी। तो ये कन्वर्ज करने की प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आपका कर्व बार बार डाइवर कुछ अलग तरह से आ जाए, कुछ अलग से आ जाए, बिल्कुल ही डिस्टोर्टेड अलग टाइप का आ जाए। ये भी एक कारण हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसका ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज और मैंने यहाँ पे येलो करके दिखाया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि जब आप ट्रैप स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, ट्रैप का फायदा क्या है कि जैसे सॉल्व बी ड्रेन है, सॉल्व बी ड्रेन, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर में एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, या जैसे मैंने क्या किया था, मैंने 8 लिया था ना, 8 यहाँ पे, मैं 8 ले लेता हूँ फिर से, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या होता है। और मैं यहाँ पे एक चीज और यूज करता हूँ, हमने क्या यूज किया था यहाँ पे, मेथड क्या यूज किया था, मेथड यहाँ लिखा है, solve int हाँ यस यस ये method. मेथड, यस हम यहाँ पे मेथड ट्रैप यूज करते हैं और मैक्स ट्रैप करते हैं 10। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको क्या फायदा होता है इससे। ठीक है, अब इनिशियली हमने क्या यूज किया था, 0 से 0.1। तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे, इससे कन्वर्जेंस इशू आई थी। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या फायदा होता है, ट्रैप और मैक्स ट्रैप यूज करने से क्या फायदा होता है। वैसे इनिशियली जो मैक्स ट्रैप है ना, उसका डिफॉल्ट वैल्यू 4 होता है। Okay. ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, जो भी एरर आ रहा है तो, हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें हमें लास्ट टाइम में भी हमारे 8 में प्रॉब्लम आई थी, 8 हाँ, में प्रॉब्लम आई थी ना, हाँ तो देखो इसमें 4.8 था वो।
What function? रुक जाओ, देखो ये है क्या दिखा रहा है, इसे सॉल्व नहीं हो रहा, रुक जाओ, इसे थोड़ा सा अच्छा करते हैं। Uh, वेट, Calc it, function, I uh, think. I think Phone there point. is give some warning that नो नो use दैट the इज, no नहीं, अबॉर्ट हो गया, ये अबॉर्ट इज स्टॉप्ड, it stopped. Morning is there, but I don't know why it stopped here. I don't know. Wait, I will run one more time. It should not be stopped here because it is not stopped before after warning. It's still stopped here. So I think let's going with a smaller value now. Wait. मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि ट्रैप्स का फायदा क्या होता है, वो बस वो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा इमरजेंसी इशू जल्द होता रहेगा उधर। देखो आप दिखा रहा हूँ ट्रैप्स के फायदे आपको। You can see now. Uh, what is happening here? I will show you. So I will kill here. Maybe it's take lots of time to complete their 10 one. So I will kill here. So I will what I want to show you. So I will give you a brief idea what I want to show you here. Um, uh, देखो जैसे 0.1 अप्लाई किया हमने इनिशियली, ठीक है। 0.1 अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि कन्वर्जेंस इशू आई। तो जो ट्रैप स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ कि जब भी कन्वर्जेंस इशू आती है ना, तो ट्रैप स्टेटमेंट क्या करता है, उसके बायस स्टेप को ना आधा रिड्यूस कर देता है, हाफ रिड्यूस कर देता है। जैसे इसमें किया, इसने क्या किया, इसके बायस स्टेप को रिड्यूस किया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, 0.1। यहाँ पे मेरे पास क्या मैं पाया 0.05, और खुद ब खुद हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, मैंने उसे कुछ नहीं किया, वो खुद ब खुद हुआ, तो कन्वर्जेंस हुआ। तो ये ट्रैप का फायदा ये है कि आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कन्वर्जेंस इशू प्रॉब्लम ठीक कर देता है। जैसे 0.025 हुआ, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस इशू आई, और यहाँ पे ये आधा करके इसे आधा कर दिया उसे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बाई स्टेप और रिड्यूस करने से हो सकता है ये कन्वर्ज करता है। बेबी इसका सोल्यूशन नीचे लाई कर रहा हूँ। फिर तीसरी बार भी किया तो यहाँ पे भी कन्वर्ज नहीं हुआ। जब ये चौथी बार किया तब देखते क्या हुआ, तब भी नहीं हुआ, 0.0625, तब भी रिड्यूस नहीं हुआ, मतलब तभी कन्वर्जेशन इशू आ ही रही है। देखो 25 इटरेशन होने का मतलब इसकी मैक्सिमम इटरेशन न्यूटन्स की होती है 25 इटरेशन। ये 25 इटरेशन में अगर ये कन्वर्ज कर गया तो कन्वर्ज किया, नहीं तो नहीं होगा कन्वर्ज। और ये पांचवी बार जब ये हुआ, पांचवी बार में भी कुछ नहीं हम गेन कर पाए, ठीक है, क्योंकि इससे मैक्सिमम लिमिट होती है 25 के बाद ये इटरेशन नहीं करता, ठीक है। ये छठी बार किया तो भी नहीं हमें कुछ मिला। छठी बार में देखो ये 6 टाइम, टू की बार 6 टाइम रिड्यूस हो गया, ठीक है। और अब हम आते हैं सातवीं बार में कुछ नहीं हुआ। अब हम आते हैं आठवीं बार, आठवीं बार में भी कुछ नहीं हुआ, तो 2 की बार 8 टाइम्स रिड्यूस हो चुका है। अब हम आते हैं नौवीं बार, तभी नहीं कुछ हुआ, 2 की बार 9 टाइम्स रिड्यूस हो चुका है अभी, ठीक है। अब हम आते हैं, अब ये कन्वर्ज कर गया, देखो ये 25वें पे जाके कन्वर्ज कर गया, हमारा सॉल्यूशन 25 में जाके कन्वर्ज कर गया। तो ये अब वो उसी वैल्यू पर आया, उससे उससे बस वो थोड़ा इंक्रीमेंट किया। अब फिर देखा हमने आगे जाके फिर सही हो गया, तो ये फिर 2 टाइम्स बढ़ गया। मतलब जो हमारी ये वैल्यू थी, ये वाली जैसे, तो ये इसे 2 टाइम्स फिर बढ़ाते हैं। जैसे ही कन्वर्ज कर जाता है ना, हम बाकी स्टेप्स को धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि हमें ना अब क्या मिल गया कि जो हमारा इनिशियल गेस था, ये हमारा इनिशियल गेस था जो होना चाहिए न्यूटन के लिए, ये हमें सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि इनिशियल गेस बेटर चाहिए उसके लिए। तो ये अगर हम बायसिंग स्टेप इनिशियली यही यूज करते हैं तो ये कन्वर्जेंस इशू नहीं आती।
पर हमने बहुत लार्ज करने की वजह से या हमने कुछ गलती लार्ज यूज करने की वजह से तो हमें नहीं मिला। तो हमें ट्रैप और न्यूटन ट्रैप का मैं फायदा ये बता रहा हूँ, ट्रैप और मैक्स ट्रैप का फायदा ये है कि आपको सॉल्यूशन कन्वर्ज करवाने का पूरा मौका मिल जाता है कि सॉल्यूशन कन्वर्ज हो सकता है किसी नीचे जाके पॉइंट में हो जाए, जैसे मैंने अभी दिखाया 9वें पॉइंट में जाके हुआ, इन 2 टू 9 टाइम्स हमने बाइसिंग को रिड्यूस किया तब जाके वो कन्वर्ज हो गया। ये बाइसिंग मतलब समझिए ना क्या कह रहा हूँ मैं, ये एनोड वाली बाइसिंग इसकी बात चल रही है। ये पहले क्या था, पॉइंट पॉइंट 1 था, इनिशियली पॉइंट 1 किया, 0 पॉइंट पहले 0 पे कन्वर्ज नहीं किया, 0.1 पे कन्वर्ज 0.1 0 पे कन्वर्ज कर गया और 0.1 पे कन्वर्ज नहीं किया। तो हमने क्या किया, फिर उसे बाइसिंग को रिड्यूस करते-करते हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, अभी धीरे-धीरे इंक्रीज करें क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज द सॉल्यूशन इनिशियल गैस ऑफ, नाउ इट इज द इनिशियल गैस फॉर न्यूटन 1। ओके, तो अभी आगे के बढ़ते गए और धीरे-धीरे फिर कन्वर्ज कर रहा है, फिर रिड्यूस करता है बाइस को, फिर से इंक्रीज करता है, फिर रिड्यूस करता है, फिर बाइस को फिर इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये 0.3 तक गया था, 5 तक गया, फिर रिड्यूस करके इसे 0.25 पे ले आया और यहाँ पे फिर ऐसे करके ये आगे करते जाते हैं, मतलब जैसे 22 पॉइंट्स है ना उससे वो रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे 0.2 तक का कन्वर्ज 0.2 तक रीच कर गया, 0.2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो 0.2 और 0.4 के 0.3 के बीच में कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, 0.2 और 0.3 के बीच में कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। अब वो 0.3 और 0.3 में 4 के बीच में करने की कोशिश करेगा, ऐसे बढ़ते जाते हैं कन्वर्ज का। इसका फायदा यही है, मैं ये यहाँ पे इतना एक्सप्लेन इसलिए किया मैंने आपको बताना चाहता था ट्रैप और मैक्स ट्रैप का फायदा क्या है। आपके मतलब आपको ये फालतू काम नहीं करना पड़ता कि आप हर बार जाके वॉइस को रिड्यूस करो, बहुत ज्यादा छोटी वॉइस लो, तो खुद ब खुद ये कर लेगा। अब मैं यहाँ पे एक और खेलते हैं हम घूमल से, तो मैं यहाँ पे घूमल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब देखिए घूमल क्या करता है। अब घूमल में देख सकते हो कि बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं पर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो एकदम से न्यूटन आया, घूमल आया, मैं क्या समझाना चाहता था, मैं यहाँ पे बहुत मेजर चीजें थी वो समझाना जरूरी है। क्या क्या मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको दोनों को, होनी और लामिया? यस है? यस। हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेन चीज समझाना चाहता हूँ, घूमल और न्यूटन का दोनों का मेथड इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, क्या हासिल करने की कोशिश की यहाँ पे। हम 22 पॉइंट के ढूंढने के लिए न्यूटन और न्यूटन का हमने एक्चुअली आई कैन नॉट अरेंज द वर्ड। उसको हिंदी में बता दो आप, हिंदी में अगर है कोई आइडिया तो। इफ यू आर नॉट गेटिंग इन इंग्लिश कैन यू स्पीक इन हिंदी? বাংলায় বল, আমি দেখি ট্রাই बांग्ला। করতেছি। চুপ হয়ে গেছিস কেন? सो नाउ अब ये तो चलो होता रहेगा, अब इसे बंद करें थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये तो कन्वर्ज होकर सॉल्यूशन तक जाएगा ही, कुछ नहीं होगा इसमें प्रॉब्लम। गोमल का यूज करने के बाद क्या अब देखो मैं हुआ? क्या फायदा हुआ, मैं आपको ओके, बताता हूँ क्या देखो क्या फायदा फायदा हुआ। हुआ? देखो यहाँ पे देखो, अब मैंने जब जब सॉल्व कर रहा था, अब बहुत ऊपर आ गया मैं लग रहा। क्या हुआ था 0.1 पे क्या प्रॉब्लम आई थी, आपने फेस क्या की थी 0.1 पे फॉर्म में, वो यहाँ पे फेस किया हमने क्या 0.1 पे फॉर्म में? क्या ये 0.1 पे वाइसिंग पे रुक गया क्या? नहीं रुका ना। देखो 0.0 पे तो कुछ नहीं हुआ था, 0.1 पे क्या प्रॉब्लम आई थी कि 0.1 पे कन्वर्ज नहीं किया था तो हमें यस 2 यस, पॉइंट देन इट विल रिड्यूस एट हाफ। हाफ हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा प्रॉब्लम। गुमल कर गया कन्वर्ज, गुमल इज गेटिंग कन्वर्ज हियर। सो अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी है, ये क्वेश्चन हो सकती है कि खिचड़ी क्या चल रही है, ये सब चीजें क्या है। तो ये सब हाँ, चीजें एक सिक्स। ये, तो ये देखो क्या है कि जो ये जो है ये 6, ये जो 6 तक है, ये 6 तक क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब ये ना क्या करता है कि ये कोशिश करता है कि 1 से 6 तक, 1 से 6 तक ये कोशिश कर रहा है कि मैं जा करके ये 6 वेरिएबल है, मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, डिकपल्ड होता है। तो हर किसी को कांस्टेंट लेकर के, हर किसी, मैंने बताया ना कि हर बाकी सबको कांस्टेंट लेकर के एक को वैरी करता है। तो ऐसे 6 वेरिएबल होने की वजह से ये 6 को वैरी कर रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे 6 वेरिएबल होने आने की वजह से 6 वेरिएबल होंगे ना कि हमें होता है कैलकुलेशन में 6 वेरिएबल आ रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि ये तो इसको पता चलेगा कि हमने क्या मॉडल इस्तेमाल किया, कैसे किया, तो ये इसको आइडिया है।
तो ये 6 वेरिएबल होने की वजह से 6 बार कैलकुलेशन कर रहा है, और हर बार 6 देखो, हर बार 6 कर रहा है। इस बार 8-9 तक किया, मतलब इस बार ज्यादा होंगे वेरिएबल, इसमें ज्यादा वेरिएबल होंगे तो ये ज्यादा बार किया। मतलब ये वही चीज है कि ये जब तक कन्वर्ज करता है, जब तक उसे मिले, मतलब ये वेरिएबल्स को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है इतनी, यानी कि इस इटरेशन में, इस फर्स्ट इटरेशन में, जो फर्स्ट वाला हमने किया, फर्स्ट वाला इटरेशन किया, इसमें इसे 6 बार लगा, 6 टाइम लगा कन्वर्ज करने में, ठीक है। फिर इससे सॉल्यूशन जो मिला वो सेकंड टाइम में गया, सेकंड टाइम में गया, और वो सेकंड टाइम में इसे 9 बार लगा किसी सॉल्यूशन को हासिल करने में, सॉल्यूशन को पाने में, ठीक है। और ये यू कैन सी स्टार वन, स्टार वन का हाँ मतलब ये है कि हाँ कि हाँ ये जो सिमुलेशन है ना, ये इसने राइट वैल्यू नहीं गेट की, अब तक राइट वैल्यू नहीं गेट की, इससे राइट वैल्यू अब तक नहीं मिली, ओके ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो ये 4 पे कर गया, क्योंकि यहाँ पे इसे दो इनिशियल गेस में, दो इटरेशन में, मतलब वन इटरेशन एंड सेकंड इटरेशन में इसे इनिशियल गेस में आंसर वो वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर गया। पर यहाँ पे आते नीचे देखेंगे, अब कुछ और देखेंगे, लेकिन एक और चीज देखो, यहाँ पे एम फॉर मेथड होता है, ये एम मेथड है, ठीक है। तो हमने गुमल इस्तेमाल किया तो हर जगह गुमल आ रहा है, आ रहा है ना। हम्म अब हम नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर गया, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया था लास्ट टाइम, यहाँ पे भी एक बार इटरेशन करनी पड़ती। अब यहाँ पे देखो इटरेशन कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, इसे 15 टाइम लगा कन्वर्ज करने में, यानी कन्वर्जेंस की बहुत इशू हुई थी, पर फिर भी ये मैनेज कर लिया, कैसे करके समहाउ मैनेज कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज, अब ये न्यूटन ने जब, जैसे जो इनिशियल गैस गुमल से आया, गुमल से जो गैस आया, उसने न्यूटन का इस्तेमाल किया, और न्यूटन ने 3 बार में कन्वर्ट कर दिया, जबकि जो पिछली बार हम जब कर रहे थे तो 25-25 बार जा रहा था, 25-25 टाइम्स जा रहा था, है ना। ऐसे तुमने मैच देखा होगा, 25 टाइम्स मैंने दिखाया था, 25 इटरेशन हो रही है, 25 टाइम्स ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो गुमल के फायदे से क्या हुआ, इसको 3 इटरेशन में ही आंसर मिल गया, तो ये एक प्रॉफिट है गुमल और न्यूटन एक साथ यूज करने का, ठीक है। और ये मेथड कैसे पता करें कि ये न्यूटन है, मैंने कैसे पता कि ये एन से पता किया, ठीक है। और ये गुमल है, ओके ये जी से पता किया। नंबर ऑफ इटरेशन एक ही बार में कर दिया इसने इटरेशन, क्योंकि मैंने बताया था ना, इसको एक इटरेशन करने में टाइम जरूर लगता है, पर ये एक ही बार में कर देता है सारे इटरेशन। गुमल को हर एक इटरेशन को अलग अलग बार करना पड़ता है, मतलब अलग इटरेशन का मतलब क्या, हर किसी को कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है, फिर उसके बाद सबको वैरी करो, मतलब हर किसी को कांस्टेंट ले लो, फिर एक को वैरी करो, ऐसे करके चलता चलता रहना पड़ता है। तो इसका ये फायदा मैंने आपको दिखा दिया। और ऐसा भी आया एक पॉइंट जहाँ पे कन्वर्स नहीं कर रहा, तो वहां पे ये गुमल अपना अपनी वैल्यू रेज करके फिर सॉल्व कर रहा, और फिर वो हमें रिजल्ट मिल जा रहा। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था ना, 8 वाले में हमें आंसर प्रॉब्लम हो रही थी ये वाली, तो 8 वाले में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं 8 वाले में क्या होता है। नहीं हो रही प्रॉब्लम, देखो कहाँ हो रही प्रॉब्लम, कर जरूर आएगा इसमें। जहां पे न्यूटन की जो, जहां पे न्यूटन को गैस मिल जा रहा है, गैस वैल्यू मिल जा रही है, वो न्यूटन कर दे रहा सॉल्व। जहां पे प्रॉब्लम हो रही है वहां पे देख रहा है ये, देखते हैं कहाँ तक आ जाता है कर। तो हम आगे बढ़ जाते तो कर्व आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ, मीडियम मेथड ट्रैप का क्या मतलब है यहाँ पे। तो ट्रैप आप डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसका मतलब ये न्यूटन इस्तेमाल करेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते ना मेथड के अंदर, तो वो न्यूटन इस्तेमाल करेगा, न्यूटन मेथड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो आपको गुमल और लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, गुमल न्यूटन ट्रैप लिख सकते हो। और मैक्स ओके ट्रैप का क्या मतलब है, मैंने बताया ना, 4 तक जा सकता है, 4 तक इनबिल्ट होता है। आप ट्रैप लिखोगे ना तो डायरेक्ट 4 बार हो जाएगा, 4 बार इटरेशन हो गई, मतलब 2 की बार 4 तक बाइसिंग रिड्यूस होगी, 2 3 4 तक बाइसिंग रिड्यूस होगी। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो वो आपको शो करेगा कि एरर है, कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये एक फायदा है मैक्स स्टेप्स का, ठीक है। और अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे बात क्या उठ रही है कि हमें ट्रैप का क्यों इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे इसलिए एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक एग्जांपल के तौर पे दिया आपको ये। तो इसमें क्या मैंने लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि जैसे मान लेते हैं, अभी होने देते हैं इसको, कहाँ कहाँ पहुंचा ये। उम्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, चलो ये टाइम लगेगा इसमें। अब टाइम एग्जांपल के तौर पे हम एक चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कर्व ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये कुछ कर्व ऐसा करके यूं हो रहा है एकदम से, तो हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। ओके, जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, और ये मतलब जो भी वोल्टेज हम कर आई आई है, सॉरी, और ये वी जो भी अब आपका जो भी मतलब वी ड्रेन हम जिसमें ड्रॉ कर रहे हैं, वी गेट में और आई ड्रेन है आपका ये, ठीक है। तो हमने कहा थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको पता है कि एकदम से कर्व नॉन लीनियर हो रहा है, मतलब ये ऐसे सीधा था, हो सकता है ये कर्व ऐसे हो जाए, ये ऐसे, तो एकदम से नॉन लीनियर हो रहा है, लेकिन नॉनलिटी आ रही है ना यहाँ पे।
कि लीनियर पहले सीधा था और एकदम से कर्व ऐसे हो गया, तो ये नॉन लीनियरिटी हुई ना एक तरह से। तो ये अगर फेस करोगे ना आप, तो इसकी वजह से भी कन्वर्जेंस इशू आती है। जैसे हम कभी थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी कन्वर्जेंस इशू आती है। मेरे वाले जब जब मैंने HF2 वाला जब सिमुलेशन कर रहा था, HF2 इंसुलेटेड वो टीफेड वाला जो एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको ऊपर, तो उसमें इशू कहाँ आ रही थी, जहाँ पे वो रीजन है, जहाँ पे थ्रेशोल्ड रीजन था, वहां पे इशू क्या आ रही थी, वहां पे कन्वर्ज नहीं कर रहा था, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया वहां पे, तब मैंने ना वहां पे ट्रैप का इस्तेमाल किया था, ट्रैप मेथड का, और मैंने बाइसिंग को रिड्यूस किया था। तब जाके के मेरे को सॉल्यूशन मिल गया था उसका। तो मैं कर नहीं पा रहा था, मतलब उसमें मुझे बार बार यही प्रॉब्लम आ रही थी कि योर मेथड इज नॉट, मतलब योर बाइसिंग इज नॉट परफेक्ट, यू हैव टू रिड्यूस द बाइसिंग, और योर कन्वर्जेशन इशू, योर मॉडल एरर, ऐसी कुछ कुछ एरर आ रही थी जो कि नहीं थी मेरे में। पर वो मैनेज कर लिया मैंने, फिर इससे पता करके, मतलब आइडिया लगा करके मेरे को आइडिया लग गया। तो यही चीज है कि मतलब जैसे अगर मान लो जैसे 0.7 पे आपका वो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और आपका 0.6 और 0.8 के बीच में जा रहा है, मतलब मान लो आपका आपने हर बार 0.2 का स्टेप्स रखा है, तो 0.6 से 0.8 जाएगा। जैसे मतलब 2 का स्टेप रखा तो क्या होगा, 0 से 0.2, 0.2 से 0.4, 0.4 से 0.6, और 0.6 से 0.8 जाएगा, ठीक है। और लेकिन आपका थ्रेशोल्ड तो 0.7 पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ कन्वर्जेंस इशू आ सकती है वो कन्वर्जेंस इशू। उसे अवॉइड करने के लिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे जो मेथड है, वो है हमारा ट्रैप। ट्रैप क्या करेगा, वो उसे रिड्यूस करके 0.7 पे ले आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना आधा करता हूँ, तो 0.6 से 0.8 के बीच में आधा क्या होगा, 0.7। अगर वो 0.7 पे भी कन्वर्ज नहीं करता, तो उसको भी आधा करके 0.65 पे ले आएगा। तो ऐसे करते करते वो कन्वर्ज कर ही जाएगा, ठीक है। अगर आप मैक्स ट्रैप की वैल्यू नहीं डिफाइन करते, या मैक्स ट्रैप को नहीं डिफाइन करते, तो ऑटोमेटिकली 4 मान जाएगा अगर ट्रैप यूज करते तो। ये मैं जानबूझ के इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे फंसते हैं बंदे, यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो अगर एसी सिमुलेशन करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि एसी करना होता है, तो आपको जस्ट यूज करना है एसी और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। कि जैसे कर कोई किसी को एसी करना है, एसी का फायदा ये है कि यहाँ पे ये फायदा हो जाता है कि एसी में अगर कैपेसिटेंस निकालना है, क्योंकि डीसी में कैपेसिटेंस निकालने का कोई मतलब नहीं बैठता। क्योंकि डीसी में तो आपको पता है कैपेसिटेंस तो डीसी में होगा नहीं, तो एसी में कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसी और फ्रीक्वेंसी वैल्यू डाल करके आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जस्ट क्या करना है, आपको डीसी स्वीपिंग का इस्तेमाल करना है। ये डीसी स्वीपिंग है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, डीसी स्वीपिंग वी बेस, फिर हम उसके स्टेप करते हैं, फिर उसके फाइनल वैल्यू करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो मैंने डीसी स्वीपिंग बताया था जो ऊपर था, वही सेम तो है इसमें, बस इसमें हम एसी फ्रीक्वेंसी ऐड करते थे। तो ये चीज है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का कुछ किसी का चाहिए, जैसे बाइपोलर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो एक एग्जांपल है। हो सकता है किसी को बाइपोलर गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो एग्जांपल है, हो सकता है किसी को नॉइस के बारे में जानना है कि किसी सिस्टम में क्या नॉइस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है नॉइस, मतलब कितनी वैल्यू है नॉइस की, किस तरह की नॉइस है, और कब कैसी वैल्यू। तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं लाइक दिस। जैसे इसमें क्या है कि हमने एक वीबीएस अप्लाई किया 0.7, बाइसिंग हमारी 0.7 है, और एसी है, और फ्रीक्वेंसी हमारी 1E9 से 10 तक इंक्रीज हो रही है। मतलब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 1E9 है, अब हम इसको स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हैं 1E9 हर बार। तो अगली बार क्या होगा, वो 2E9 होगा, अगली बार क्या होगा, 3E9 होगा। ऐसे करते करते वो 11E9 तक इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। दैट इज मीन्स 11 गीगाहर्ट्ज, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। और अब इसका क्या मतलब है, मल्टी डॉट एफ का मतलब क्या है, मल्टी डॉट एफ का मतलब ये है कि जो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा हर बार। अब मल्टी डॉट एफ लिख दिया, तो एफ स्टेप क्या होगा, हर बार मल्टीप्लाई करेगा इससे। पहले क्या था, एडिशन था। अब जब मल्टी एफ डॉट एफ से क्या होगा, ये जो 2 है वो हर बार मल्टीप्लाई होगा इससे। अब जैसे 2 पर हर बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा इससे, फ्रीक्वेंसी से, 2 टू दी पावर 10 टाइम्स। और 2 टू दी पावर 10 टाइम्स क्या होता है, वो होता है आपका 1024। 1024 इज इंटू 10⁻6 इज योर फ्रीक्वेंसी। उसको हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं 1.024 गीगाहर्ट्ज, जो कि मैंने देखा कि हम यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज है, और हम क्या करें, हर बार एफ स्टेप्स का मतलब होता है कि हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई वो क्यों कर रहे हैं, पिछले वाले में क्यों नहीं किया, इसकी वजह से ये मल्टीप्लायर होता है फ्रीक्वेंसी का, और उससे ये कितने टाइम होगा, 10 बार होगा, तो यानी 10 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1024 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। तो ये सबका अपना वे होता है, जिसको जैसा चाहिए मतलब वैसा कर सकता है, मतलब ऐसा कुछ है। और ये फिर वही है, इसने तीनों चीज को मिक्स कर दिया है। इसने फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर दिया और बाइसिंग वोल्टेज को मिक्स कर दिया। इससे अगर आपको नॉइस से नॉइस मिल जाएगा, इससे चाहिए कैपेसिटेंस के वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस कैपेसिटेंस का कर्व चाहिए, वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये एक चीज है। हमारा कर्व कन्वर्ज हो गया, देख लेते हैं। देखो 0.8 पे कन्वर्ज हो गया, और यू आर राइट अबाउट दैट कि ये 1.2 के बाद मूव कर रहा है इधर की ओर,
1.2 के बाद इधर मूव कर रहा है, पर ये कन्वर्स किया यहाँ पे, क्योंकि नहीं किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टोर्टेड आ रहा है, पर हमें पता है कि ये कन्वर्स कर रहा है यहाँ पे। तो हम देखो गुमल से क्या फायदा हुआ, हमें थोड़ा सा जरूर अनइक्वलेट पॉइंट मिल रहे हैं, पर वो गुमल की वजह से ये कन्वर्स करेगा। ठीक है, ये एक फायदा है, जैसे यहाँ पे आप समरी देख सकते हो। ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं कन्वर्स किया है, कन्वर्स नहीं किया है, सॉरी, यहाँ पे कन्वर्स नहीं किया है। न्यूटन की वजह से, न्यूटन गुमल मिलके भी नहीं कन्वर्स करवा पाया इसको नहीं करवा पाया कन्वर्स। सो सो ये कन्वर्स नहीं किया है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा हायर नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा हायर वैल्यू ऑफ, इससे क्या हमें सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है कि वी कांट मेक इट लार्जर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वी कांट मेक लार्जर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वी हैव टू मेक अ सफिशिएंट वैल्यू। एंड आल्सो वन मोर थिंग वी गेट देयर हियर, कि वर्क फंक्शन क्या करता है, कर्व को मतलब उस पोटेंशियल से शिफ्ट कर देता है। मे बी वो ऊपर भी शिफ्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे ही शिफ्ट करेगा, हो सकता है ऊपर भी शिफ्ट कर दे, डिपेंड ऑन दी विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज दिस। सो नाउ कम हियर फॉर ट्रांजिएंट वन। ट्रांजिएंट आपको पता ही है कि ट्रांजिएंट होता कैसे देखने में। तो ट्रांजिएंट कुछ ऐसा, ट्रांजिएंट कैसा होता है, मतलब ट्रांजिएंट कैसे समझते हैं कि रैम, ट्रांजिएंट आते ही कहाँ पे ट्रांजिएंट, हम या इसके इसमें भी महसूस कर सकते हैं ट्रांजिएंट को। ट्रांजिएंट हम यूनिट स्टेप जानते होगा, यूनिट स्टेप, हाँ। यूनिट स्टेप्स इसमें भी फेस कर सकते हैं हमसे, और इसमें भी फेस कर सकते हैं, हम करते हैं बहुत ज्यादा बार, पर बाद में क्या होता है, कांस्टेंट होने की वजह से फिर ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, हम पीस वाइज लीनियर का मतलब ये हो गया, ये ऐसा कुछ एक पॉइंट से लीनियर है पीस वाइज, मतलब पहले इनिशियली ये कांस्टेंट रहा था, एकदम से लीनियर हो गया, पीस वाइज लीनियर मॉडल, इसमें भी हम फेस करते हैं, मतलब। तो ये एक तरीका, ये प्रॉब्लम है, मतलब जो कि हम फेस करते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन में। मतलब हमें जब ट्रांजिएंट सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसे कब कब हम यूज करते हैं, किस सिग्नल में यूज करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे हम बाई स्टेप यूनिट स्टेप इक्वेशन उसमें यूज करते हैं, हम ट्रांजिएंट सॉल्यूशन को पता करने के लिए। हम कहीं भी करते हैं जहाँ पे इनिशियल पॉइंट में ही ट्रांजिएंट की प्रॉब्लम आती है, तो वो पॉइंट है। तो हम यहाँ पे आगे कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी गेट हम 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और डीसी अप्लाई कर रहे हैं, डीसी है, एसी नहीं, डीसी है। तो हमने रैम्प टाइम 1/9 रखा। रैम्प टाइम का क्या मतलब है यहाँ पे, रैम्प टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये क्या होता है, जैसे हमने 22, हम ये तो कोई बता सकता है कि हम कभी भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना सकते कि एकदम से ये ऐसा हो, ऐसा करना मतलब मुमकिन नहीं है, मेरे को लगता है काफी हद तक। हम इसे ऐसा कभी कोई यूनिट स्टेप सिग्नल हम जनरेट नहीं कर सकते, मतलब जैसा थ्योरेटिकली होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, वैसा हम जनरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम इसका रीजन बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एकदम से हो रहा है, मतलब एकदम से अगर कोई भी हम कैसे भी कितना भी हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए उसके लिए। ठीक है, एक टाइम टी होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए कि वोल्टेज को हमें पर्टिकुलरली इतने वोल्टेज में इंक्रीज करना है। हम ऐसे 0 सेकंड में नहीं कर सकते, या 0 नैनो सेकंड में, 0 माइक्रो सेकंड में नहीं कर सकते, तो हमें पर्टिकुलर टाइम चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रैम्प टाइम। ठीक है, मान लो अगर ये इसको 1 नैनो सेकंड लगा इस इनपुट तक पहुंचने में, क्योंकि कोई भी जानता है कि यूनिट स्टेप इनपुट नहीं बन सकता, यूनिट स्टेप इनपुट बनाना बहुत मुश्किल है। तो यूनिट स्टेप बनाना मुश्किल आसान है, पर वो रैम्प टाइप का ही होता है, रैम्प टाइप का ही होता है। ठीक है, वो क्योंकि उसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 0 सेकंड में हमने 0 से 2 वोल्ट पे लंब कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज है रैम्प टाइम, और यही रैम्प टाइम का मतलब होता है कि हमने जब यहाँ रीच कर गए, ये यहाँ इस पॉइंट पे रीच कर गए, तो कितने टाइम में हम इस वैल्यू को रीच कर रहे हैं, 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, 0 से 1 वोल्ट पे हम कितने टाइम रीच कर रहे हैं, तो ये है रैम्प टाइम आपका। ठीक है, और टी स्टॉप टाइम हो गया भाई, इसको रोकने का टाइम, मतलब जब कब जाके स्टॉप करना है उसे। और स्टेप टाइम हो गया कि मतलब हम वेरी करके चेक कर रहे हैं, मतलब कितना वेरी करके चेक कर रहे हैं। तो ये यहीं पे समझा रखा है इन्होंने, सही गंदी तरह से, मतलब जो भी तरह से समझा रखा है इन्होंने। अब एडवांस सॉल्यूशन टेक्निक में आ गया कि मतलब ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एडवांस सॉल्यूशन टेक्निक्स जो भी है, मतलब ये ब्रेकडाउन रीजन के ब्रेकडाउन रीजन से रिस्पेक्ट में है। तो ब्रेकडाउन रीजन अगर आपको निकालना है तो अभी हम जानेंगे, क्योंकि फालतू में पूरा सॉफ्टवेयर सीखने का कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि जो हमारे काम का नहीं है उसको जानने का क्या मतलब है। और दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग दिस वन। अब आते हैं हम रन टाइम आउटपुट। ठीक है, तो रन टाइम आउटपुट का क्या काम है। ठीक है, तो वी विल, दिस इज द रन टाइम आउटपुट, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया ना, ये रन टाइम आउटपुट है, दिस इज द रन टाइम आउटपुट। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने कहा था कि आता रहता है, तो रन टाइम आउटपुट है आपका। ठीक है, तो ये डेकबिल्ड के जो सॉल्यूशन था, चलो यही चीज है। और फिर मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया आईजीएम का मतलब क्या होता है, कि कितना कितना, मतलब जे के जैसे जे है यहाँ पे, ये क्या है,
क्या मैंने जैसे एग्जाम एक्सप्लेन किया था यहाँ पे आपको, ये मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए देखते हैं। मैट्रिक्स। यहाँ पे जे, यहाँ पे जे है, और देखो यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे जे है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे जे पे, कि यहाँ पे ये बताया था मैंने आपको कि ये 6 बार इटरेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे देखो आई एंड जे इंडिकेट्स द इनर लूप। तो जैसे इटरेशन नंबर 1 तो है, मैंने क्या कर 6 बार हो रहा है, 6 बार इटरेशन हो रहा है, 6 बार इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। तो जैसे ये इटरेशन नंबर 7 है, ठीक है, ये इटरेशन नंबर 7 तो है, पर इसको इटरेशन करने के लिए 6 बार चाहिए। क्यों मैंने 6 बार क्यों चाहिए इसे, इसको 6 बार इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 6 बार इसको इसलिए लगता है क्योंकि ये सबको कांस्टेंट लेकर के फिर उसे वेरी करता है, मतलब सबको क्या करता है, कांस्टेंट लेकर के एज्यूम करता है उसकी वैल्यू, फिर जो एक वेरिएबल है उसको वेरी करके आंसर निकालता है। तो इसे 6 बार लगता है इसे एक एक लूप को कंप्लीट करने में, मतलब एक सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे 6 बार लग रहा है। तो सॉरी 7 बार, सॉरी ये 7 बार है, 7 टाइम लगता है इसे एक लूप को कंप्लीट करने में। तो यही चीज है, ये चीज मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये एक लूप जो एक लूप है वो 7 है, 7वां नंबर लूप में से 7 टाइम लग रहा है उसको उस एक डिसीजन से सॉल्यूशन गेन करने में, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ये भी समझ गया होगा। और अब रहा बात ये कि मैंने एक चीज और बताया था आपको कि मतलब मैं क्या करता हूँ, कभी कभी ये भी यूज करता हूँ, मतलब यूज करते हैं, मतलब मैं तो जनरली यही यूज करता हूँ क्योंकि न्यूटन मेरे को दिमाग खराब करता है, मेरा न्यूटन। तो मैं हमेशा न्यूटन से बचने के लिए, मैं अपना थोड़ा दिमाग बचाने के लिए मैं हमेशा ये इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि न्यूटन क्या करता है, हमेशा मेरा कन्वर्जन इशू लाता है, पर लेकिन न्यूटन ऑटोनार क्या करता है, ऑटोनार थोड़ा फास्टर है एज कम्पेयर टू न्यूटन रैप्सन। आज आपने पढ़ा भी होगा न्यूटन रैप्सन और ऑटो न्यूटन रैप्सन दोनों पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा इनिशियल गेजिंग में शायद आसानी होती है। नहीं निकला, मतलब कन्वर्जेंस इशू आया है यहाँ पे, आएगा ही क्योंकि आना ही है। पर यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, वो दिखा नहीं पाया मैं शायद यहाँ पे, एक मिनट, नहीं दिखा पाया मैं। चलो मेक इट इसे हम अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, 4.0 वाले केस पे अब रन कर देते हैं। कोई डाउट आ रहा है क्या अब तक, कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, देखो आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑटो अनर इस्तेमाल किया था, तो देखो ऑटो अनर के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है, ए और मैंने एन इस्तेमाल किया था न्यूटन के लिए एन। तो जो जो जिस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे जिससे कन्वर्जन से मिल रही है मुझे, तो वहां पे वो इस्तेमाल कर रहा है, समझे ना। तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ गई मेरी थोड़ी कैलकुलेशन की, मतलब मेरे को अगर 1 सेकंड ज्यादा लग रहा होगा तो 1 सेकंड कम लग रहा है, 2 सेकंड कम लग रहा है, और थोड़ा सा कर भी अच्छा आ रहा है मेरा, कम टाइम लग करके अच्छा कर पा रहा है। तो ये एक फायदा है जो कि गेन कर सकते हो यहाँ पे। और अदर जैसे कि मैंने पॉइजन कॉन्ट्रिंग सॉल्यूशन, अच्छा ये यस। शायद तुमने ये मुझे कहा था रोनी, ये शायद तुम इसकी बात कर रहे थे क्या? यस यस, अच्छा पॉइसन इसकी सॉल्यूशन। इसकी बात शायद मैं एक बार जरा सर्च करना पड़ेगा मुझे मैनुअली, रुको, शायद मेरे को लगता है मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। कि मैंने इसका यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब अगर आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व ही क्यों करना है जब हमें माइक्रो माइक्रो में नहीं जाना, मतलब तो यही चीज है, मतलब एक हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है उसमें। तो देखते हैं क्या रीजन है इसका, कैसे कब यूज करते हैं। एंड स्क्रो, you have to use n.schr for using that one। so मैं अगर उसको यूज करता हूँ, देखते हैं हम अपने एग्जांपल में यूज करते देखते हैं। जब हमें यूज मतलब जब इसका इस्तेमाल करना तो हम कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है इससे। ये तो बहुत ही मतलब उसमें करते हैं हम जब मतलब हमें बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा छोटे मॉडल कर रहे हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं वैसे इसका। वैसे मुझे पता नहीं है इसका वैसे, क्योंकि मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बट देखते हैं क्या होता है।
तो कोई कर रहा है एसपी, आ रहा है आपका, अभी कर रहा है, पॉइजन इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। और ये भी गुमल जैसा ही है, समझ में आ रहा है साफ, दिख ही रहा है कि गुमल जैसा क्यों है ये, क्योंकि अब हर इटरेशन को इसको कहाँ तक जाना पड़ रहा है, इसको एंड मतलब देखा जा सकता है साफ कि यहाँ पे इसे 4 5 6 7 तक जाना पड़ रहा है, 4 5 6 7 तक जा रहा है, और ये हमारा कर्व है, और शायद ऑलमोस्ट सेम ही कर्व मिल रहा है हमें जो मिल रहा था, पर लेकिन ये थोड़ा सा अनडिजायरेबल कर्व है। सो तुम ऐसे यूज कर सकते हो इसमें, लेकिन इसमें अभी मैंने कुछ पैरामीटर नहीं डाले, इस वजह से ये गलत आ रहा है कर्व। After addition of various parameter, maybe we get good curve here, or maybe it's have also one more thing, you have to use different method here also. Different method means none that direct, like this is a method for solving the equations. So this is a method should be for your solving the equations. Now come to our slides, so you can use that one also, but I don't think for the TFET one, I don't think you need to use that one. Even many of the, if they mention in the research paper, then you have to use that one. Unless I think everything is done by three methods only, because this is a microscopic things, like microscopic things, and maybe the things which is we can't get from Newton and other things. So अब लॉग फाइल की बात है, लॉग फाइल तो आपको पता ही है लॉग फाइल कैसे लिखते हैं। प्रोब स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हमें कुछ की चीजें मेजर करनी, तो रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करनी होती है कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो प्रोब का इस्तेमाल बहुत होता है। अब बात रही कि 2D और 3D में क्या अंतर है। 2D और 3D में अंतर ये होता है कि 2D जो होता है, 2D में वो जो करंट होता है एम्पेयर पर माइक्रोन में होता है। ओके। मतलब ये होता है कि आपने डिवाइस का वेट कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। अगर आपका डिवाइस का कुछ वेट है, तो आपको अगर करंट जानना है उसमें, तो आपको उस डिवाइस के वेट के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर 20 वेट आपका डिवाइस का वेट है, तो यहाँ पर 20 डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना होता है आपको, तो आप उस हिसाब से करंट जान पाएंगे। क्योंकि जो यहाँ करंट निकला है, जैसे ये भी सकते हैं, यहाँ पर शायद मैंने नहीं निकाला, तो करंट निकलेगा यहाँ से इससे, तो वो एम्पेयर पर माइक्रोमीटर में होगा, तो उससे आप वेट जानने के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नाउ फिर एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट तो मतलब इतना कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर इनिशियली इनिशियलाइजेशन ऐसा करना होता है। जो आपका लॉग फाइल है, जो करंटली ओपन होने वाला है, जैसे यहाँ लिखा भी है मैंने, तो जैसे अगर मैंने लिखा है, जैसे मेरा लॉग फाइल है xyz.log, तो आपको वही फाइल लिखना है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट इनिट इन फाइल, जो लॉग फाइल जो कैलकुलेशन से कैलकुलेट होके आएगी, उसी लॉग फाइल को उसमें डालना है, क्योंकि उसी में से डाटा निकलेगा। तो आपको वही लॉग फाइल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और अब जैसे इन भाई साहब ने कैलकुलेट किया है कि मतलब हाउ टू कैलकुलेट दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो जैसे यहाँ पे किया इन्होंने कि मतलब इनका कैलकुलेशन है, मतलब ये कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ये बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को हमने कोड के फॉर्म में लिख कर हमने यहाँ यूज किया है, जस्ट लाइक दैट। और प्रो मैंने तो आपको बताया कि मतलब रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने में, कैपेसिटेंस वगैरह किसी पॉइंट में कैलकुलेट करने में उसके लिए इस्तेमाल होता है। सो यही है हमारा आज क्लास, आज खत्म हो गया क्लास हमारा। कोई डाउट? No, that was an excellent explanation. Thanks. कुछ डाउट वगैरह, कुछ प्रॉब्लम, मतलब मेरे किसी एक्सपीरियंस? I have a question that fin width and channel width are same in FinFET. One more time, I just not recognize the word. You can write in chat box if you have a chat box. Uh, I told that channel width. Channel width. Okay, channel width or And fin width are same or not? In FinFET we use fin.
So fin width and Wow. channel width are same. I don't know why you comparing always tree fed with fin fed. There is I think different thing. I think maybe let's I will check that, but I don't think that okay, fin width is same as the channel width. I will show you a paper. We will you get know about that. Hmm. You have any paper? You have any paper regarding that right now? Yeah. Yes, actually I have paper on combine just like FinFET, GFET or MOSFET. But in FinFET, I just MOSFET in MOSFET there is no problem with challenge width. But in FinFET, I face that fin width and challenge width. Is that same or not? I have a doubt, so I cannot Can you put share me value. share your paper with your skin? Can you share the paper in your skin? Uh, You can share your paper in your skin where you want where you see that. okay, just 1 minute. Uh, can you all see my screen? Yes, yes, yes. I can see your skin. Yes, I In can see. here, in here it is a FinFET in C, and the width of fin is the gate, I think. And what is the channel width in that? The channel width is like LG. L. L1 is your channel width. That is only L part. L is denoted by in A. In A. I'm saying in A. in A A. figure. LG means length. That is length of gate is same as channel length because the source and drain is only participating in channel. And, and Maybe yes, you are right. Maybe you are saying that the source region around the region. I I want to know about width. Length is okay, but wide is the same. White means you are saying channel wide. No, you are Yes, saying yes. about channel. Channel wide. Channel wide is same as fin wide. Mm, in case of FinFET, it is a FinFET. Yes, yes. Fin fade. So you are saying that channel width is same as fin width. I don't know. I want to ask about that. So fin, where is a fin? Where is a fin? Fin, can you show me fin? What is the fin length? Fin length is LG. Okay, and chain length is LG. So LG and LG same. Yes, The yes. chain length is Yes, same as fin length. So same. yes, yes. So same. It should be same. Yes. I guess because Uh, Length is same, but I doubt about weight. as width is If changed, width weight, will be changed. It is 3D device, so it will be changed. How we get a doubt? The width will change. I doubt about that. Gate width and source width, drain width are different. So, what is the actual channel width in that? If we Okay, see that C, then we see that source width, drain width are same, but gate width are greater than the source and drain. okay, So, okay, is okay. gate width You the want to what will be the gate width? You are uh, asking for gate width. What is the gate width? मतलब I तुम am जाने asking about the whole challenge width. Is challenge whole challenge width is the same as the fin okay, width? okay, 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 okay. Yes, 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 yes. It should be same. It should be, but Okay. one more thing. For a contradiction, the channel will be not the same as the. It will be larger. Channel will be larger as compared to uh, fin width.
because Yes, yes, because yes. because I'm saying this because you know that I channel is, appreciate it. Channel width is greater than fin width, but yes. in that case, I have doubt that they define same or not. For which case you want to ask this question? Because the gate width are greater. So in that case, so fin width and channel width are not same. Yes, you're right. You are right. You are right. Um, actually, actually, I want to say this because what I'm telling you, that source and drain. The source and drain is like uh, is transporting the current, transporting the electrons or current. Yes, So there is one more way to do that. That may be away from the channel length, away from the fin width. So that's why I'm saying that there may be a one more thing, that little bit current is passing through the source and the away from the fin width, because you know that there is a fringe effect are there. Fringe effect is always there in corner atoms. So that is the reason why I'm saying that the width of the channel is larger here as compared to fin width. And another thing is you're saying that is length of the gate is, what is your question? Length of the gate is no, I have just one question. Width, only width. Length is width okay. is higher. I think width is will be higher because you know that there is some other effect is also there. It should be same, but due to the some other effects, maybe it will be higher. It's not be not be lesser than, but it may be higher. It may be higher. It not be smaller. So it is greater than I think, I guess, fin width. If that reason. Thanks. Maybe I have maybe that question. so as I think so, you are what is your project? Current project is TFET. You Uh, are working or yes, in a, TFAT and FinFAT both are our current project. okay. So TFET you are simulating in Centrus. Yes, Okay. I have to So work on Centerus and she have to work on Silvaco. So we have a different platform, but work are same. okay. So you have a question. You are a topper. I think she is saying that you are a topper. I working on Yes. Centrus. He is that. Okay. That's great. So then nice to meet you. So as I told you, Silvaco is my work. I'm perfect in Silvaco. So if you have a question regarding device physics, so I have you need I will tell you a class on Saturday and Sunday that will give you brief idea of FinFET and TFET. If you want, you can join. As I will explaining the Lamia about that. Yes, yes. So I so uh, can you please also teach us how to plot in MATLAB? okay, I have to ask with my colleague about that. They are using that one because I have not used till now, because in Silvaco, as you know, that overlay statement is there, so I don't need Yes, yes. to. So why not you using why you're using Silvaco Centrus if you can do in Silvaco also Actually, my supervisor told me to do work in in Centrus. Centerus. Okay. Yes. Yes, you can't go Are, against the uh, supervisor. and in backup, I have Silvaco. I have to work in with I have to work with because Lamia. because But because Centros, I have all that, I know that Centros, but I have a confusion that you can extract the log file to in your Excel. Can you extract in Centros? You can extract the data in Excel sheet yes, I can extract it. uh, in your Centros. Then it will be possible to use that data to plot the curve, whatever you want. I So extract the data and I uh, मैं डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं ग्राफ आन सकता हूँ बट there is a problem that I cannot convert all the graph together. अच्छा Just just like volt. Uh, if I converts. take
two or more voltage, then it Okay. cannot converge together that the curve. It will show only one curve for one voltage, and ओके ओके, after समझ गया that समझ गया। you have to तो cross तो it then तो again. आपने क्यों नहीं, मतलब उसको पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि ओवरले स्टेटमेंट होता है कि नहीं? क्योंकि मुझे भी लगता है मेरे को सेंटेंस में होना चाहिए ओवरले स्टेटमेंट। Actually, आई एक्चुअली मुझे आज ही पता चला जे क्या सिल्वको में ऐसी होती है, अच्छा, ये चीज़ तो मैंने मैं आपको दिखा, ट्राई जैसे करूंगी. ऐसा ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? ऐसा कुछ सोच रहे हो आप कि मैं प्रेज़ेंट करके दिखाता हूँ? ऐसा कुछ सोच रहे हो ना आप? मतलब मेरे को पहले कन्फर्म होना चाहिए ना कि ये चीज़ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। सो तो तो मुझे अगर बता दो कि कौन-कौन से डिवाइस के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मेरे को इस हिसाब से मैं आगे-पीछे जान के रखूँगा ना, क्योंकि मेरे को ये आप जानते हो कि चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब मेरे को, मैं फिनपेट से डील नहीं किया हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका एग्ज़ैक्टली, मैं तुम्हें पढ़ के बताऊँगा फिर। फिर मैं अपने कलीग से हेल्प लेकर, ये ऐसा कुछ समझना चाहते हो क्या? ऐसा कुछ? यू वांट Yes, लाइक yes, yes, समथिंग लाइक दैट? yes, yes, ओके, ओके, ओके। दैट इज़ दिस स्टेटमेंट। यू कैन सी दैट। दिस। yes. Today I know that about this statement, ओके, so ओके, I have to try to find this for Centeras. ओके, ओके, ओके। আমি তো কিছুই করিনি। Let this is the end of this session. But I have a question. What I have to do on Saturday? What do you want to learn from me on Saturday? Uh, Anything? I think I have done nothing for my project. So TFET, I think it will So go. I have to learn about the TFET. That's why I can explain you, because I know little bit about the TFET, but whatever you need, whatever want. So tell me the what is your supervisor want from you? What is your supervisor want to? Supervisor क्या चाहते हैं तुमसे? मतलब क्या प्रोजेक्ट में चाहते हैं TFET के? আমার প্রজেক্টে কি কি চাচ্ছে সেটা একটু রনি বলে দে তো। हिंदी। He हिंदी। wants to अच्छा, actually अच्छा। ছি he wants to ছি show us that about the subthreshold slope and the conduction energy band and अच्छा, वो सब, अच्छा ये सब तो चलो ठीक है, ये तो मैं बता दूँगा। तो तुमने 3D में किया है? ये इसे इसने रोनी ने 3D में किया है कि इसमें किया है? उसने 3D. सॉल्यूशन, 3D में ही किया है। अच्छा 3D में किया है। ओके, ओके। But वो he wants जीनियस। that the subthreshold salt will be less than 60 millivolt. But सो I ज़्या have get for hafnium dioxide. ओके, For hafnium dioxide, I will get uh, 33 millivolt. ओके, ओके। Uh, तो but yes, I have one more question that